Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are doing great, having fun, and at the same time enjoying the sessions that are going on along with your teachers, right? So I'm also enjoying with you all, having fun to attend the class like this, to interact with you it's like this. It feels really great, right? You all make my day. So thank you so much for making my days to you, making my day. I must thank you all. Now, children, yesterday what we have done? Can you just tell me? Yesterday we have completed the book exercise of which chapter? Of Stone Soup. So today we are going to start some work in our notebook. Yes. So after the explanation what we do, we generally do the book exercises. And once we have done the book exercise, then what Shalini ma'am does? Yes, she always starts the work with the notebook. So it's today's turn to do the work in the notebooks. So everybody is having their English notebooks. Are you all ready? Okay, so just get your English notebook, open the first page of your notebook, that is the index page, right? So first you are supposed to take out your English notebook and then you have to fill your index page, right? So come on now, everybody be ready. I'm going to show you that how you are supposed to fill the index page, right? So bring your notebook, be ready, and here I share you what you are supposed to do. Now just check here. Can you see this? We are going to do notebook work, right? So let's first open the index page. In the index page, as I have earlier also told you that you have already written this first part of the column, that is half yearly. You have already done this, right? Now come to the next column, that is number 1, poem Jungle Rhyme. This index also you have filled it on 9th. Number 2 is naming words. Naming words also you have filled it on 13th. Now today is 17th of July. So we are going to fill the third index, that is number 3. So put the serial number here in the column of serial number, number 3. Now after that write down today's date, that is 17.7.2020. Either you can put a slash or you can put a dot. Whichever way you prefer to write the date, you can write that way. Both are correct. Either you can put a dot or you can put a slash like this. Okay. Now after filling the date, please write down the topic in the column of title, that is lesson 5 Stone Soup. So we are going to do the first notebook work in our notebook copy, notebook of lesson 5, that is Stone Soup. So first you are supposed to fill the index. Everybody has filled the index? Yes. Now let's come to the now turn the page and come to the new page where you will start writing. What was the last work that we have done? We have written the naming words, the definition of naming words, and also we have done one exercise related to naming words, right? So after that
we are going to do some exercise on stone soup, right? So just be ready. So children, hope that everybody has filled the index, right? So now let's come to the next page, or you can say where you can start your work in your new sheet. And after completing the naming words, we are going to do lesson 5 stone soups, some exercises. So let's start. Okay, so here the first thing that you are supposed to do is write down homework, HW. Okay, so first you will write down HW in your notebook and make and write the heading that I have written here. Yes, I have something really very special for you, a very special homework. Every one of you love to have pizzas. आप सबको पिज़्ज़ा खाना पसंद है ना? तो चलिए आज मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ पिज़्ज़ा बनाने के लिए. राइट, यू आर सपोज टू मेक अ पेपर पिज़्ज़ा. यस, so what is the homework? Make a paper pizza and draw your favorite toppings on it and paste it here on your notebook. ठीक है, आपको पहले पेपर लेना है, कोई भी आपके पास. कलरफुल अगर पेपर है तो इट्स वेल एंड गुड. कलरफुल पेपर नहीं है तो आपके पास ओल्ड ब्राउन पेपर होगा, कवर जिसपे आपने अपने ओल्ड कॉपीज में या बुक्स में किया होगा. राइट, so you can cut it in the shape of a pizza. Pizza is in of what shape? Can you just tell me? It's round in shape, है ना? सर्कल और राउंड इन शेप. तो आप राउंड शेप का पिज़्ज़ा कट कर लिया. उसके बाद आप वाइट पेपर में जो भी आपके फेवरेट टॉपिंग्स हैं उसे ड्रॉ किया और उसके ऊपर पेस्ट कर दिया और बन गया आपका पेपर पिज़्ज़ा, है ना? इट्स सो इजी. तो जैसे आपको पिज़्ज़ा खाना पसंद है वैसे ही आपको उतना ही मज़ा आने वाला है इस पेपर पिज़्ज़ा को बनाने में. राइट, so first you write down the work that I have given you. होमवर्क जो लिखा है यहाँ पर मैंने नोटबुक में, आप भी जल्दी से अपने नोटबुक में लिखिए. तो फास्ट आपको लिखना है, जल्दी जल्दी. बट जल्दी लिखने में अपने नोटबुक को गंदा नहीं करना है. डू नॉट यू राइट इन डर्टी हैंड राइटिंग. इट शुड बी नीट एंड क्लीन, है ना? बहुत सुंदर, साफ सुथरा, अच्छे से लिखना है. You all know cursive writings, right? So try to start writing in cursive. कर्सिव में हम जब लिखते हैं बेटा तो हमारी हैंडराइटिंग और ज़्यादा सुंदर दिखती है और अच्छी दिखती है ना? So I am waiting for you all. Please write the homework. चलो जल्दी से होमवर्क लिख लो बच्चा. Make a paper pizza and draw your favorite toppings on it. Full stop. Paste it here. ग्लू से यहाँ पर अपनी नोटबुक में पेस्ट कर देनी है. आपको पता है I have also made a paper pizza. और मैंने उसकी फ़ोटो भी क्लिक करी है. मैंने पेपर पर पिज़्ज़ा बनाया और मेरे घर पर कुछ रेड कलर के पेपर्स थे, कुछ ग्रीन कलर के पेपर्स थे. तो मेरा फेवरेट टॉपिंग कैप्सिकम और टमाटोज़ और अनियन है और उस पर मैं चीज़ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है पिज़्ज़ा में. तो मैंने रेड कलर के पेपर्स कुछ कट किए, मैंने ग्रीन कलर के पेपर्स कट किए. रेड कलर से मेरे टमाटोज़ बन गए, ग्रीन कलर पेपर से मेरे कैप्सिकम्स बन गए, है ना? वाइट कलर पेपर से मैंने अनियंस दिखा दिया और इस तरह से मैंने अपना पेपर पिज़्ज़ा रेडी कर लिया. सो डू यू वांट टू सी माय पेपर पिज़्ज़ा?
Okay, I will show you, but first you have to write down the homework in your notebook. Then only I am going to show you. Hope you are writing it. कर रहे हैं ना सारे बच्चे? Now, hope that you have written. अब मैं आपको अपना पेपर पिज़्ज़ा दिखाती हूँ. दिखाऊं? देखना चाहोगे? देखो मैंने आपके लिए पेपर पिज़्ज़ा का बनाकर और उसका फ़ोटो क्लिक करके अपने मोबाइल पर और आपके लिए फ़ोटो दिखाने के लिए यहाँ पर रखा है. देखो मैं दिखाती हूँ. Here it is. Yes, this is my paper pizza. इसको मैंने पता है कैसे बनाया? ये मेरे पास पेपर प्लेट रखा हुआ था पुराना, राइट? तो वाइट कलर का मैंने पेपर प्लेट यूज़ किया. उस पर देखिए रेड कलर, जैसे मैंने कहा था कि मैंने रेड कलर, मेरे पास पेंट थी तो मैंने उस पर पेंट अप्लाई किया. और जैसा कि मैंने कहा कि रेड कलर के पेपर्स मेरे पास थे, मेरे पास ग्रीन कलर के पेपर्स थे, तो रेड कलर से मैंने टमाटोज बना दिए. उसको ब्लैक स्केच पेन से ब्लैक ब्लैक डॉट्स बना दिए तो वो टमाटो के सीड्स बन गए. ग्रीन कलर को मैंने हाफ पूरे सर्कल में कट किया और बीच से हाफ कर दिया तो ये कैप्सिकम्स बन गए, कैप्सिकम के स्लाइसेस. और कुछ मेरे पास थोड़े से येलो कलर के पेपर्स थे तो येलो कलर्स के पेपर को कट करके मैंने दिखाया कि मैंने ढेर सारा इस पर चीज़ डाला हुआ है. एंड कुछ थोड़े से मेरे पास बहुत थोड़े से पुराने ब्लैक कलर के पेपर्स भी रखे हुए थे तो मैंने क्या किया, ब्लैक कलर के पेपर पे वाइट पेंट थोड़ा थोड़ा लगाया और सी ऑरिगेनोज और ये सारे मैंने डाल के ऑलिव्स डाले और हियर माय पेपर पिज़्ज़ा इज रेडी, राइट? तो देखो मैंने स्प्रिंकल भी किया इसमें पेपर दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक पेपर्स मैंने स्प्रिंकल किया हुआ है, ऑलिव्स लगाए हैं, मैंने चीज़ इतना सारा डाला है, कैप्सिकम डाला है, टमाटोज डाला है और मेरे पेपर पिज़्ज़ा रेडी. मैंने 2 पेपर प्लेट्स यूज़ किए थे. एक पेपर प्लेट से पूरा बड़ा सा एक पिज़्ज़ा बनाया, दूसरे पिज़्ज़ा को मैंने बीच से हाफ कर दिया और ये स्लाइस भी कर दिया साइड से, 2 के हाफ कर दिए सीजर से कट करके. सो देखा मैंने कितना सुंदर सा पेपर पिज़्ज़ा बनाया. नाउ इट्स योर टर्न. Let me see how well you can prepare the paper pizzas. Okay? So isn't the homework exciting? I know it is very exciting for you. But इसे करने से पहले आपको आज का class work भी करना है. You have to do your class work too. So now turn the page. होमवर्क लिखने के बाद अब पेज टर्न करिए और नेक्स्ट पेज में जल्दी से क्लास वर्क और डेट आज का लिखिए, राइट? सी योर द वे आई हैव रिटन. सी, write down class work CW and then write down today's date. Write down the date. Just give me a sec, beta. Just give me a second. And I guess there is some error. And yes, here it is done. Yes, it's done. Now see, अब आप देख सकते हैं ना properly, right? So here is the date and class work. So write down the CW at the top of the page and write down date.
डेट और क्लास वर्क आपको लिखना है, राइट? After writing down the date and classwork, then in the second line you will write down lesson 5 stone soup, the name of the chapter, right? So write down the name of the chapter. और चैप्टर का नेम लिखने के बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द मिडल ऑफ द पेज एंड जस्ट डिवाइड द पेज इनटू 2 इक्वल हाफ्स. देखो ऐसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है. कैसे? सच में कट करके डिवाइड नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है यूजिंग द स्केल एंड अ पेंसिल कलर और अ पेंसिल, राइट? आपने इससे पहले भी न्यू वर्ड्स लिखे हैं ना, है ना? तो हम आज इस चैप्टर में जो जो न्यू वर्ड्स थे जो हमने सीखा है इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान, वी आर गोइंग टू राइट दोज न्यू वर्ड्स, द वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन क्लास 1 फॉर मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड वी आर गोइंग टू लर्न देयर स्पेलिंग्स बाय हार्ट, दी स्पेलिंग्स. ओके, so please draw a line. Now everybody has drawn the line. Now beta, see, put a heading again in the second line. First line में आपने क्या लिखा था? lesson 5 stone soup. Now in the second line write down new words. You will write down new words. Exercise A. Exercise A को कहाँ आप लिखेंगे? मार्जिन के बाहर, मार्जिन के बाहर, आउटसाइड द मार्जिन. मार्जिन दिख रहा है ना आपको? रेड कलर का लाइन दिखता है, दो लाइंस, डबल लाइंस. वो लाइन के बाहर जो स्पेस रहता है उसे मार्जिन कहते हैं. सो प्लीज राइट डाउन एक्सरसाइज ए आउटसाइड द मार्जिन. और फिर उसके बाद आप अंदर लिखेंगे न्यू वर्ड्स and underline it with color pencil. After doing this, then you will write down these 8 new words that you have read in this story. So पहले मुझे आपको explain करने दीजिए और बताने दीजिए what are these words. Number 1 is young. Young. What is the meaning of young? Y-O-U-N-G, young. What is the meaning of young? Young means jawan. Young means jawan. Now, number 2 is V-I-L-L-A-G-E, village. V-I-L-L-A-G-E, village. Village means gaon. Village means gaon. Number 3 is H-U-N-G-R-Y, hungry. H-U-N-G-R-Y, hungry. So what is the meaning of hungry? Bhook. Hungry means bhookha, hungry. Double O-D, food. F-O-O-D, food. So can you tell me what is the meaning of food? Food means खाना. आपने मॉर्निंग में खाया है ना ब्रेकफास्ट? Now number 6 is soup. S-O-U-P, soup. S-O-U-P, soup. So what is the meaning of soup? Soup means एक liquid dish जिसमें हम vegetables डालकर पकाते हैं and it is liquid and it is very healthy for our health, right? So उसे कहते हैं soup. ये एक recipe है. Number 7 is S-H-I-N-Y, shiny. S-H-I-N-Y, shiny. What is the meaning of shiny? चमकीला. मैंने बताया था
जो शाइन करता है, चमकता है, दैट इज कॉल्ड एज शाइनिंग. Number 8, tasty, T-A-S-T-Y, tasty. टेस्टी का मीनिंग क्या होता है आप सबको पता होगा ना. जब आपकी मॉम बहुत कुछ अच्छा सा खाना बनाती हैं तो आप क्या बोलते हैं, मॉम आज का खाना बहुत टेस्टी है ना, बहुत ही स्वादिष्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टी? स्वादिष्ट. तो चलिए अब आपको ये सारे 8 वर्ड्स के मीनिंग पता चल गए हैं. अब आपको जल्दी जल्दी इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखना है विदाउट मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक. सो ये नंबर्स 1 to 8 आप मार्जिन के बाहर लिखेंगे और इन वर्ड्स को मार्जिन के अंदर, और दोनों तरफ वर्ड्स को लिखने हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए स्पेलिंग. जब आप 2 बार लिखेंगे तो आपको स्पेलिंग लर्न भी हो जाएगी. और हमें बोल बोल कर लिखना है जोर से. वी हैव टू स्पेल इट एंड देन वी हैव टू राइट इट, जिससे हमें याद हो जाए ये वर्ड्स. Y-O-U-N-G, young. Number 2, V-I-L-L-A-G-E, village. Number 3, H-U-N-G-R-Y, hungry. Number 4, F-O-O-D, food. Number 5 is S-T-O-N-E, stone. S-T-O-N-E, stone. Number 6 is S-O-U-P, soup. S-O-U-P, soup. Number 7 is S-H-I-N-Y, shiny. S-H-I-N-Y, shiny. Number 8 is T-A-S-T-Y, tasty. Number 8 is T-A-S-T-Y, tasty. अब आपको जल्दी जल्दी लिख लेना है. You have to do it fast. Only 8 words are there. और जोर से बोल बोल कर लिखना है जिससे आपको लर्न हो जाए. Everybody is doing the work. Okay. So hope everyone of you are doing your work. Let me see how many of you have done it. देखती हूँ कौन जल्दी से सबसे पहले खत्म कर कर मुझे हैंड रेज करके बताता है, मैम आई हैव डन. किसने कहा मैम आई हैव डन? सुना मैंने, कोई तो कह रहा है मुझे मैम आई हैव डन. वाओ, हु इज इट? वेरी गुड, वेल डन. जिसने भी सबसे पहले किया उसके लिए क्लैप लाउडली मेरी तरफ से. अब देखते हैं सेकंड कौन होगा, सेकंड, थर्ड. जल्दी से, यू हैव स्टिल टाइम. इन बिटवीन आई प्लेड लिटिल म्यूजिक फॉर यू. काम करते करते हम म्यूजिक सुनते हैं तो अच्छा लगता है ना बेटा.
चलो अब देखते हैं कौन सेकंड और कौन थर्ड होता है। फर्स्ट तो कोई हो गया, अब सेकंड और थर्ड कौन होता है? वाओ, अब तो कुछ और हैंड्स उठ रहे हैं। यस यस यस, कोई तो सेकंड भी बन गया लगता है। जल्दी से उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। जो जो बच्चे, जितने बच्चे, सब आप लोग जल्दी जल्दी अपना वर्क कर रहे हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू ऑल। वेल डन चिल्ड्रन। अब मुझे लग रहा है कि आप सब ने अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट चिल्ड्रन, वेल डन। सो नाउ आई एम गोइंग टू come back to the screen. Yes, so hope that everybody of you have completed your work. कर लिया था ना? चलो, सो अपने लिए क्लैप करो तो। वेरी गुड। चलो अब हम एक बार इन्हीं वर्ड्स को जो लिखा है उसे हम प्रोनाउंस करते हैं अच्छे से, ठीक है? एंड दिस इज आवर लास्ट एक्टिविटी दैट वी आर गोइंग टू डू। आफ्टर दिस हम इस सेशन को कंक्लूड करने वाले हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? चलो अपनी नोटबुक में देखो एंड टेल मी। यंग, YOUNG, कैसे प्रोनाउंस करना है? यंग। नाउ सेकेंड वर्ड इज village. Say it, village. Now third is hungry. Third is hungry, right? Fourth word is food. What is the fourth word? Food. Now tell me fifth one. जल्दी से बताओ। Stone. STONE, stone. Fifth, then number 6 is soup. SOUP, soup. Now number 7, shiny. SHINY, shiny. And the last one is tasty. TASTY, tasty. Very good. So children, now अब आपको क्या करना है? आपने वर्क तो अपना कंप्लीट कर लिया। सो अब आपको वो वाली एक्टिविटी करनी है जो मैंने करके आपको दिखाई, दैट इज टू मेक दी पेपर पिज्जा। दिस इज योर टुडेज होमवर्क। सो होप दैट बाय टुमारो यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर होमवर्क. Enjoy doing the activity, have fun, and yes, for cutting the papers, do not do it on yourself. Take help of the elders. अपने मम्मा और पापा को आप हेल्प करने के लिए कहेंगे कि वो कटिंग कर देंगे, आप पेस्टिंग का काम आप कर सकते हैं, ठीक है? कट सीजर से आपको नहीं करना है, ठीक है? ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू से बाय टू एवरीवन. वी आर गोइंग टू मीट अगेन tomorrow. Bye.